السلام طرف سے گوہر حسب وعدہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں سلام جے کے، کوشش کرتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کو باخبر کریں، آپ کو ان حالات واقعات سے باخبر کریں جن کا تعلق جموں کشمیر سے ہے، جن کا تعلق ملکی اور ریاست ملکی سیاست سے ہے، یا ملک کے باہر بین الاقوامی سطح پر کچھ اہم ترین معاملات ہوتے ہیں، ان سے آپ کو باخبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا، آج بھی خبر، تجزیہ اور تبصرہ ہوگا، اس امید کے ساتھ کہ آپ کی اور ہماری گفتگو بھی 9:45 کے بعد ہوگی، یعنی جب آخری مرحلے پر ہمارا پروگرام چلے گا، آخری پڑاؤ پر ہم ہوں گے تو ہماری فون لائنز کھلیں گی حسب وعدہ۔ کل بھی جس طریقے سے آپ سے گفتگو ہوئی تھی، آج بھی کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ فون کالز کو شامل پروگرام کرایا جائے۔ فی الحال آج جمعۃ المبارک ہے اور پہلے ذرا ہسٹری آف دا ڈے پر ایک نظر ڈالیں گے اور اس کے فوراً بعد آئیں گے تو خبر کا پٹارا کھولتے ہیں، کیونکہ ہر چھوٹی بڑی خبر کے ساتھ تجزیہ ہے اور وہ تجزیہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ ریاست کے اندر کچھ ایسے معاملات سامنے آ رہے ہیں جن پر گفتگو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہسٹری آف دا ڈے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ جب آپ ہسٹری آف دا ڈے دیکھیں تو ہماری رابطہ سائٹ فیس بک، انسٹاگرام کو اور ہماری آفیشیل ویب سائٹ پر ضرور آئیے گا، جہاں پر آپ ہمارے ساتھ براہ راست رابطے میں بھی رہتے ہیں میسیج باکس میں آ کر، اور ساتھ ساتھ جب آپ ہماری ویب سائٹ پر آتے ہیں تو وہاں پر آپ ٹی وی کو بھی دیکھ پاتے ہیں اور اپنی آرا بھی ہم تک پہنچاتے ہیں۔ آپ کا اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ فی الحال ہسٹری آف دا ڈے بتائیں گے گوہر کچھ ہے، دلی اسٹوڈیو میں اس وقت میرے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ اشفاق گوہر۔ تو پروگرام کی شروعات طے فارمیٹ کے مطابق تاریخ میں آج کے دن کے حوالے سے روزانہ کی طرح آج بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ 6 اکتوبر کو ملکی اور عالمی سطح پر کیا کچھ ہوا ہے۔ چند اہم معلومات، واقعات جو آپ کی نظر کرتے ہیں تاریخ کے آئینے میں آج کا دن، اور آج کے دن 6 اکتوبر سال 1681 میں نیدرلینڈ اور سویڈن نے معاہدے پر دستخط کیے ہیں، وہ آج ہی کا دن تھا۔ اور آج ہی کے دن سال 1947 میں پاکستان اور یمن اقوام متحدہ میں شامل ہوئے، اور 6 اکتوبر سال 1939 میں جرمنی اور روس پولینڈ کی تقسیم پر متفق ہوئے، وہ آج ہی کا دن تھا۔ اور آج ہی کے دن 6 اکتوبر سال 1950 میں فرانس کی راجدھانی پیرس میں علم فلکیات سے متعلق فیڈریشن کا انعقاد ہوا ہے، وہ آج ہی کا دن تھا اور سال 1950۔ اور آج ہی کے دن 6 اکتوبر سال 1960 میں مغربی جرمنی نے مشرقی جرمنی کے ساتھ تجارتی معاہدے پر دستخط کی، وہ آج ہی کا دن تھا۔ اور آج ہی کے دن 6 اکتوبر سال 1967 میں برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نے اپنے مقبول موسیقی ریڈیو اسٹیشن کا آغاز کیا، وہ آج ہی کا دن تھا۔ اور آج ہی کے دن 6 اکتوبر سال 1993 میں مہاراشٹر کے اورنگ آباد میں زلزلے سے 10,000 سے زائد افراد کی موت ہوئی ہے، وہ آج ہی کا دن تھا۔ اور آج ہی کے دن سال 2003 میں وشوناتھ آنند نے عالمی ریپڈ شطرنج چیمپئن شپ جیتی، وہ آج ہی کا دن تھا 6 اکتوبر اور سال 2003۔ تو ناظرین، یہ تھی تاریخ میں آج کے دن کے حوالے سے آج 6 اکتوبر کو ملکی اور عالمی سطح پر کیا کچھ ہوا ہے ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ اب خبروں کی شروعات ہوگی اور خبروں کی شروعات کریں گے اشفاق گوہر۔ چلیے جناب، خبر کا کرتے ہیں آغاز، اور سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ انہدامی کارروائی یعنی بلڈوزر بابا ایک بار پھر سرخیوں کے اندر ہے، اور خبر یہ ہے کہ بلڈوزر بابا کی کارروائی ایک بار پھر صوبہ کشمیر کے ساتھ ساتھ صوبہ جموں کے اندر ہونے جاری، اور اس سلسلے میں اس وقت کی اہم اور بڑی خبر کہ جموں کشمیر میں انہدامی مہم کو ایک بار پھر تیز کرنے کا اشارہ دیا گیا ہے، اور سری نگر انتظامیہ نے شروع کی ہے انہدامی مہم، اور اس انہدامی مہم یعنی اس اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کے تحت کل 71 کنال زمین پر سے قبضہ جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق کہ وادی کے دیگر اضلاع میں بھی ایک بار پھر انہدامی مہم کو شروع کر دیا جائے گا۔ بڑی خبر، اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو جو ہے وہ شروع کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں کل شہر سری نگر یعنی ضلع سری نگر کی جو 7 تحصیلیں ہیں وہاں پر بیک وقت یہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو شروع کی گئی۔ عیدگاہ کے اندر، نارتھ سری نگر کے اندر، پنتھا چوک کے اندر، خانیار کے اندر، ساؤتھ سری نگر کے اندر، سینٹرل شالٹینگ کے اندر، چھانا پور تحصیل کے اندر، اور وہاں پر کل ملا کر جو ہے 71 کنال کی زمین جو پرائم لینڈز ہے، جس پر کروڑوں روپیہ جس کا لاگت جو کروڑوں روپیہ جس کی مالیت بتائی جا رہی ہے، اسے کل آزاد جو ہے وہ کرایا گیا ہے۔ ٹیم کل ریونیو آفیسر اور پولیس آفیسروں
के हमरा जब नॉर्थ की हम बात करें, कैसर महमूद की सरबराही में ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव बटपोरा, शालीमार, सैदपोरा, बाला और दीगर मकामात पर जो है वो कार्रवाई की गई। यहाँ पर 14 कनाल 5 मरला स्टेट लैंड गाछराई ज़मीन पर जो कब्जा था उसे हटा दिया गया और उसी तरह की कार्रवाई जो है वो खानियार तहसील के अंदर हुई, जहाँ पर 35 कनाल ज़मीन 35 कनाल और 9 मरला स्टेट लैंड जो है वो रिट्रीव की गई ब्रेन इलाके से। और उसके साथ साथ जब आप देखेंगे लसजन के आसपास इलाके के अंदर जो तहसीलदार पंथा चौक है राकिब अहमद, उनकी सरबराही में 5 कनाल 5 मरला ज़मीन को बाजियाब कराया गया, रिट्रीव करवाया गया। जोनीमर ईदगाह तहसील के अंदर भी इसी तरीके से तहसीलदार इशफाक खान की सरबराही में जो है वो 8 कनाल स्टेट लैंड जो है वो वापस लेने की बात जो है वो शुरू की गई। इधर इब्तिदाई खबरों के मुताबिक जहाँ कुल मिलाकर 71 कनाल ज़मीन जो है वो वापस ले ली गई है, लेकिन अब इसके अंदर की खबर ये है कि बुलडोज़र बाबा की कार्रवाई और एंटी एनक्रोचमेंट की कार्रवाइयाँ तेज़ होने जा रही है और बाज़ाब्ता तौर पर रेवेन्यू महकमे ने जो पिछले 3-4 महीनों में एदाद-ओ-शुमार जमा किया और वाइट लिस्ट एक बनाई है, उस वाइट लिस्ट पर काम जो है वो शुरू किया जाएगा और पुलिस बाज़ाब्ता तौर पर इस कार्रवाई के दौरान प्रोटेक्शन के तौर पर वहाँ पर मौजूद भी रहेगी। जहाँ श्रीनगर के अंदर यह कार्रवाई हुई है वहीं पर खबर ये है कि शुमाल और जनूब के अंदर, साउथ और नॉर्थ के अंदर और सेंट्रल कश्मीर के अंदर भी इसी तरीके की कार्रवाई का आगाज़ जो है वो किया जाएगा और माना जा रहा है कि आने वाले 72 घंटों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर एक बार फिर बुलडोज़र बाबा यानी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो देखने को मिल सकती है। याद रखिएगा जम्मू सूबे के अंदर भी तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है और पहले ही नोटिस इजरा कर दी गई है और कार्रवाई जम्मू में भी एक बार फिर शुरू की जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप रवां साल के दौरान देखेंगे तो इससे पहले भी एक बड़ी मुहिम छेड़ी गई थी, 2-3 महीने तक काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में ये मुहिम रही थी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके ये ठंडी पड़ी थी, लेकिन अब की बार फिर से कार्रवाई की गई। 71 कनाल फिलहाल कल ले लिए गए हैं, लेकिन कार्रवाई जारी रहेगी और उस लिस्ट पर काम होगा जिसे पहले ही तैयार किया गया है सूबाई और ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से। तो ये थी बात जनाब एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव की, जिसकी कार्रवाई चलेगी और चल रही है। फिलहाल बढ़ते हैं एक और अहम और बड़ी खबर की और बात करते हैं मरकजी हुकूमत के एक और बड़े फैसले की। आपको याद होगा कि 5 अगस्त सन 2019 के बाद सबसे पहले जमात इस्लामिया को कलअदम तंजीम करार दिया गया था 5 साल के लिए और उसके फौरन बाद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को ममनुआ तंजीम करार दिया गया और अब जो है रात देर गए एक और ऑर्डर जारी कर दिया गया। कश्मीर के अलहदगी पसंद लीडर शब्बीर अहमद शाह की तरफ से बनाई गई जमात डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी पर भी शिकंजा कसा है जो इंतजामिया ने और मरकजी हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर इस जमात पर पाबंदी आयद कर दी है। मरकज की तरफ से जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी पर पाबंदी आयद कर दी गई है, पाबंदी आयद की है और इस तरीके से ममनुआ तंजीमों की फहरिस्त में शब्बीर अहमद शाह की जमात को भी डाल दिया गया है। ये बात काबिल जिक्र है कि इससे पहले JKLF, उससे पहले जमात इस्लामिया को भी इसी तरीके से ममनुआ तंजीमों की फहरिस्त में डाला गया है और अब जमात और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के बाद ये तीसरी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो अलहदगी पसंदों के हवाले से, जिन्हें शब्बीर शाह जिसे चला रहे थे और डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी जिसका नाम था, उसे बाज़ाब्ता तौर पर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 के कई दफात के तहत ममनुआ करार दे दिया गया है और यह साफ कर दिया गया है कि अगर कानूनी दायरे में रहकर इन तमाम तंजीमों के असासों को मुंजमद और इन तमाम लोगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो आहिस्ता आहिस्ता करके दोबारा से ये अपनी कार्रवाई जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो इस तरीके से जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को ममनुआ तंजीमों और बैंड ऑर्गेनाइजेशन में जगह दे दी गई है और ऑर्डर जो है वो रात देर गए जारी कर दिया गया है। याद रखिएगा शब्बीर अहमद शाह भी पिछले कई सालों से लगातार मुसलसल नज़रबंद है और उनके ऊपर भी कई अहम तरीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं, संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जिसकी समाअत कोर्ट के अंदर भी चल रही है और कोर्ट के अंदर जहां उन्होंने पहले ही अपनी ज़मानत को लेकर अर्जी भी दी है जिस पर फैसला होना बाकी है। इस बीच अब उनकी जमात डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी पर भी शिकंजा कसा गया है और उसे ममनुआ तंजीम करार दिया गया है। इधर इब्तिदाई खबरों के मुताबिक ये
पाबंदी जो है वो इब्तिदाई तौर पर 5 साल के लिए रहेगी, जिसके बाद इसको दोबारा भी रिव्यू किया जाएगा। इधर जो माहिरीन है, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं, उनका मानना है कि पाबंदी नाफिजुल अमल कर दी गई है और असासों को बहुत जल्द मुंजमद किया जाएगा, जिसकी फहरिस्त पहले ही तरतीब दे दी गई है। तो इस तरीके से जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी तीसरी जमात है जम्मू कश्मीर से, वादिया कश्मीर से, जो पाबंदियों के दायरे में आ चुकी है 2019 के बाद। और ये बात काबिल जिक्र है कि तकरीबन जो दफात लगाए गए हैं उसमें काफ़ी संगीन इल्ज़ाम इस जमात पर लगाए गए हैं कि किस तरीके से इनके राब्ते पाकिस्तान के अंदर है, किस तरीके से लश्कर, जेश और दीगर अलहदगी पसंद लीडरों के साथ इनके राब्ते हैं, और किस तरीके से ये मुल्क मुखालिफ सरगर्मियाँ जम्मू कश्मीर के अंदर चला रहे थे। इसलिए तमाम तर शवाहिद को मद्देनजर रखते हुए इस पर फिलहाल 5 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। तो चलिए नाज़रीन, ये थी शब्बीर शाह के हवाले से, उनकी जमात के हवाले से खबर। बढ़ते आगे, बात ज़रा जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के हवाले से एक और बड़ी खबर, जहां पर प्रॉपर्टी टैक्स का मामला कुछ महीनों तक, कुछ दिनों तक छाया रहा, जिसको लेकर मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से भी एहतजाज किया गया है और मुख्तलिफ ताजर अंजुमनों की जानिब से भी एहतजाज किया गया। लेकिन जो जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स है, फ़िलहाल इंतज़ामिया की जानिब से टैक्स को इल्तिवा में रखा गया है और अब माना जाता है कि आने वाले ULB और पंचायती इंतखाबात के पेश नज़र, उसको मद्देनज़र रखते हुए इंतज़ामिया की जानिब से इसे फ़िलहाल इल्तिवा में रखा गया है। इससे पहले भी 2 बार इंतज़ामिया की जानिब से इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जहां बात करेंगे श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, उनकी टर्म जो है वो नवंबर 5 को ख़त्म हो रही है। उसके साथ साथ ही जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की टर्म जो है वो 14 नवंबर को इख्तिताम पजीर हो रही है। उसके बाद ही इंतखाबात होंगे, लेकिन इस इंतखाबात के पेश नज़र अब माना जाता है कि इंतज़ामिया की जानिब से इसे फ़िलहाल इल्तिवा में रखा गया है। इस पर फ़िलहाल रोक है, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स जिस पर काफ़ी बवाल भी खड़ा हुआ था, अब इंतज़ामिया की जानिब से फ़िलहाल इल्तिवा में रखा गया है। इस खबर पे तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर चलते हैं, जहां हमारे साथ हैं कश्मीर ब्यूरो मीर हिलाल हांजुरी। हिलाल, जिस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स की हम बात कर रहे हैं, काफ़ी बवाल भी खड़ा हुआ था, अब माना जाता है कि इंतज़ामिया की जानिब से इसे इल्तिवा में रखा गया है और माना जाता है कि इंतखाबात के पेश नज़र इंतज़ामिया की जानिब से यह फैसला लिया गया है। जो 30 सितंबर की तारीख इसके निफाज के लिए या इसके रिटर्न के लिए पहले ही तय की गई थी। हालांकि 2 तारीख इस साल के अंदर हमने देखी है कि जब कहा गया कि ये प्रॉपर्टी टैक्स फाइल किया जाए, लेकिन दोनों तारीखें हैं बदल गई। 30 तारीख यानी 30 सितंबर की जो तारीख थी, अब एक ऑर्डर बाज़ाब्ता तौर पर हाउसिंग डिपार्टमेंट की जानिब से जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि जो 30 सितंबर की तारीख फाइलिंग ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स डेट थी, उससे फिलहाल हज़फ किया गया है और नई डेट अभी नहीं दी गई है, वो अभी भी इल्तिवा में ही रखा गया। और उसके बारे में यही कहा गया कि जब तक ना म्युनिसिपल इलेक्शंस, चाहे कॉर्पोरेशंस के, काउंसिल्स के, कमिटीज के हो जाएंगे, तब तक कोई नई डेट नहीं होगी। लेकिन इसके पस मंजर को समझने की जरूरत है, क्योंकि जम्मू के अंदर काफी हीड़ देखा गया था प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। चाहे पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू कश्मीर की, उन्होंने भी बड़ी जोर शोर के साथ इस मामले को उठाया था, लेकिन जम्मू की पब्लिक का जो रिएक्शन था, दैट वाज वेरी हार्ड। और इस फैसले को जो आज लिया जा रहा है, इसको हमें उस तनाजुर में देखना है कि जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की मरकजी दाखिला वजीर के साथ रिसेंटली मुलाकात हुई, जम्मू सूबे से या भारतीय जनता पार्टी की जो सीनियर क़यादत है जम्मू कश्मीर से, जब उनकी मुलाकात दिल्ली के अंदर हुई, तो कुछ कंसर्न्स उन्होंने उठाए थे वहां, जिसमें उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स का भी इजहार किया था, जिसमें उन्होंने स्मार्ट मीटरिंग का भी इजहार किया था। और आज के डिसीजन को मुबस्सरीन उस मुलाकात के साथ जोड़ते हैं जो दाखिला वजारत के साथ हुई है, और माना जा रहा है कि ये उसी कॉन्टेक्स्ट में जो फीडबैक जम्मू कश्मीर के जो बीजेपी के लीडरान हैं उनकी जानिब से जो गया है, क्योंकि जम्मू के अंदर माना जा रहा है कि बीजेपी का ग्राउंड है इन फैसलों को लेकर थोड़ा कमजोर हो गया, और उसी की भरपाई के लिए इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। हालांकि इस फैसले के लिए जो यहाँ पर चीज मुकर्रर की गई है कि म्युनिसिपल इलेक्शंस हो जाने चाहिए, लेकिन मुबस्सरीन ये कहते हैं कि नए इंतखाबात को, नए म्युनिसिपल इलेक्शंस को इन प्रॉपर्टी टैक्स से क्या वास्ता है, क्योंकि उससे पहले भी यहां म्युनिसिपल बॉडीज ने ये डिमांड रखी थी कि इस मामले को हमारी नोटिस में लाया जाए, हमें डिस्कस करने दे, फिर हम देखेंगे, लेकिन उस वक्त भी सरकार ने उसे यकसर मुस्तरद किया था। तो इस फैसले को आज
बिल्कुल इस एतबार से देखा जाता है कि जो दाखिला वजीर अमित शाह साहब की सदारत में मीटिंग हुई थी जम्मू कश्मीर बीजेपी क़यादत की और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की, उसी कॉन्टेक्स्ट में इस फैसले को अभी तक देखा जा रहा है। यानी कुल मिलाकर फिलहाल इल्तिवा में डाल दिया गया है प्रॉपर्टी टैक्स। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़ी खबर ये कि प्रॉपर्टी टैक्स जिसको लेकर मरकजी हुकूमत से लेकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से बयान जारी कर दिए गए थे। सियासत जम्मू से लेकर श्रीनगर तक इस पर बहुत ज्यादा हुई थी, लेकिन दो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद, एक नोटिफिकेशन जो जारी की गई थी उसके बाद एक और नोटिफिकेशन जारी कर दी गई। दोनों नोटिफिकेशंस के बावजूद भी जब मियाद पूरी हो रही थी और टैक्स का निफाज करना था, तो इस सिलसिले में फिलहाल इसे ठंडे बस्ते में डालने का फैसला जो है वो इंतजामिया की तरफ से लिया गया है। हमारे ज़राए के मुताबिक कोई भी नई डेट मेंशन नहीं की गई है और ना ही कोई अमेंडमेंट कानून के अंदर पिछले में की गई है। तो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात सामने हैं और शायद उसको ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया हो, मुबस्सिरीन का यह मानना है। लेकिन जिस तरीके से कुछ ने आपको बता दिया कि 5 नवंबर को श्रीनगर की और 14 नवंबर को जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मियाद जो है वो मुकम्मल हो रही है। अब यह सिर्फ जम्मू और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तक ही दायरा नहीं है, बल्कि जो दीगर म्युनिसिपल कमेटीज है, म्युनिसिपल काउंसिल्स हैं, और उनके लिए भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका था और उन्हें भी कहा गया था कि किस तरीके से इस एक्ट का निफाज करना, और कुछ ग्राउंड वर्क भी इस पर किया गया था। लेकिन फिलहाल नई नोटिफिकेशन न आने की वजह से यह माना जा रहा कि सरकार ने इसे फिलहाल ठंडे बस्ते में डालने का फैसला ले लिया है। बढ़ते हैं जी आगे। सरकार के फैसलों की बात हो रही है तो आपको एक और बड़ी खबर से बाखबर करें, जहां कल हमने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया रिश्वत में मुलविस 10 पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला ले चुकी है। वहीं पर इत्तलात यह है कि ये 10 के 10 पुलिस अफसरान उस स्कैम के अंदर है, उस ममनुआ घोटाले के अंदर, उस घोटाले के अंदर है जिसे आप कहते हैं कि व्हीकल हायरिंग स्कैम, यानी गाड़ियों को हायर किया जाता था, बाद में दिया जाता था, और यह हायरिंग का प्रोसेस जो पीसीआर श्रीनगर के अंदर हुआ है उसको लेकर ही इन पुलिस अफसरों के नाम सामने आए, जिसके बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने यह फैसला लिया है। बात याद रखिएगा कि क्राइम ब्रांच को बाज़ाब्ता तौर पर इख्तियार मिल चुका है कि वो 10 पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करे। ये वो 10 पुलिस अफसर हैं जो व्हीकल हायरिंग स्कैम के अंदर नाम सामने आ रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है कि इस तरीके से पुलिस पर सवाल उठे हो और इलेक्शन टेन्योर या उसके बावजूद जिस तरीके की गाड़ियों को हायर किया जाता है, दिया जाता है, उस बाद में पेमेंट्स की जा रही है, बाद में बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि पेमेंट मिली नहीं, या एक गाड़ी की 3 गाड़ियां की जाती है, बड़ी चीजें जो है वो चलती हैं। इस पूरे मामले को लेकर ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से 10 लोगों के खिलाफ शिकंजा कसा जाएगा। इससे पहले भी जो कॉम्पिटेंट एंड ऑडिटर जनरल है, CAG है, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट जो 2014 में सामने रखी थी और रिपोर्ट को प्रेजेंट किया गया था स्टेट असेंबली के अंदर, उसमें भी उन्होंने कहा था कि 4.04 करोड़ रुपया दिया गया जी हायरिंग के लिए, बसेस को, ट्रक्स को, लाइट मोटर व्हीकल्स को ड्यूरिंग 2014 पार्लियामेंट्री इलेक्शन जम्मू कश्मीर के अंदर। तो ये जब पार्लियामेंट के इलेक्शन 2014 में हुए तो हायरिंग की गई, गाड़ियों को हायर किया गया, तो CAG ने उस हायरिंग के मामले पर भी सवाल उठाया और कहा कि 4.04 करोड़ रुपया जो दिया गया है, जब उनकी तहकीकात की गई तो पता लगा कि जो नंबर्स लिखे गए या तो वो स्कूटीज के नंबर है, मोटरसाइकिल्स के नंबर है, नॉन कमर्शियल व्हीकल्स के नंबर है, छोटी गाड़ियों, ट्रैक्टर या बुलडोजर्स के नंबर लगाए गए थे। यहां से बताया गया था कि ये सारी गाड़ियां जो है ये इस्तेमाल की गई है। ये CAG की हम बात बता रहे हैं। उसके बाद ये मल्टी करोड़ स्कैम जो है चलता रहा, इस पर तहकीकात भी होती रही। फिलहाल अब ये दूसरी बार है जब PCR के अंदर प्राइवेट गाड़ियों को हायर करने के मामले पर इस तरीके की खबर सामने आई। कुल मिलाकर 10 अफराद के खिलाफ फिलहाल कार्रवाई होगी। सीनियर अफसर SSP रैंक के भी है, इसमें ASP रैंक के अफसर है, SDP रैंक के अफसर है, सब इंस्पेक्टर रैंक के अफसर है, हेड कांस्टेबल और सीनियर कांस्टेबल के तौर पर भी बहुत सारे नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर 10 लोगों का जो ऑर्डर कल हमने आपको बताया था कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, दरअसल ये कार्रवाई जो है इस पंच मंजर में आपको देखनी होगी कि जो व्हीकल हेयरिंग का मामला है, यानी किराए पर गाड़ियां लेने का मामला है, उसी को लेकर यह पूरा मामला जो है वो चला हुआ है और हुकूमत ने अब शिकंजा कसने का फैसला लिया है। जो क्राइम ब्रांच को इख्तियारात दिए गए हैं कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत। अब यह नाम भी है
چونکہ آرڈر جب سامنے آیا سوشل میڈیا پر آیا تو سب کے نام بھی ہے، چونکہ انویسٹیگیشن پارٹ چل رہا ہے اس لیے ہم نام نہیں بتائیں گے آپ کو، لیکن ضرور نام سب کے سامنے ہے، سب کے پاس بھی ہے۔ چلیے جناب، یہ تو تھی پولیس کی کارروائی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی، لیکن ذرا بات اب کرتے ہیں جموں کشمیر کے حوالے سے دیے گئے بیان کی، اور بیان دیا ہے جی داخلہ وزیر صاحب نے، اور بیان تب دیا ہے جب 2 روزہ قومی کانفرنس کا اہتمام دلی کے اندر کیا جا رہا تھا قومی تحقیقاتی ایجنسی کی طرف سے۔ اس دوران جموں کشمیر کا ذکر کرتے ہوئے داخلہ وزیر نے کہا کہ حالات انتہائی خراب ہوا کرتے تھے، لیکن اب کی بار حالات بہتر ہوئے ہیں۔ انتہا پسندی اور دہشت گردی کا کلا کما کرنے کے لیے یکساں حکمت عملی کو ترتیب دیا گیا ہے، اور جو گراف ہے وہ لگاتار کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، بات کریں ہم جہاں اینٹی ٹیررزم جو کانفرنس نئی دلی کے اندر اس وقت جاری ہے، 2 روزہ کانفرنس جو کل شروع ہوئی تھی وزیر داخلہ کی جانب سے اس کا افتتاح کیا گیا، اور آج بھی یہ جاری رہے گا۔ اس سلسلے میں جموں کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں جس طرح سے ملیٹنسی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا تھا گزشتہ سالوں کے دوران، اور گزشتہ 4 سالوں کے دوران جس طرح سے اس پر قابو پایا گیا وہ قابل تعریف ہے، اور مختلف ایجنسیاں جو کام کر رہی ہیں جموں کشمیر کے اندر اور مرکز کے اندر، اس سلسلے میں انہیں بھی ہدایت دی ہیں کہ نئی کوئی تنظیم نہ بنے۔ اس سلسلے میں ایجنسیز کو باضابطہ طور پر ہدایت دی گئی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس کانفرنس کے دوران جب خطاب کیا تو ذکر کیا ہے کہ 2004 سے 2014 تک قریب 7217 ایسے وارداتیں ہوئی ہیں، ایسے واقعات پیش آئے ہیں خاص کر جموں کشمیر کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے 2014 کے بعد جموں کشمیر کے اندر 2197 صرف معاملات سامنے آئی۔ وزیر داخلہ کی جانب سے کانفرنس کے دوران کہا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی فی الحال مرکز کی ہے، اور اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے یا دہشت گردی کی تحقیقات میں اچھی مشق، یہ کچھ اہم نکات ہیں، 5 اہم نکات جس پر بات کرنے کے حوالے سے اس پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس 2 دنوں کے دوران کل اور آج بھی اس پر بحث ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی دہشت گردی کی فنڈنگ کے رجحانات اور انسداد کے اقدام، دہشت گردی اور جرائم کے انسداد کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ دیگر جو UAPA اور دیگر دفعات کے تحت ڈیجیٹل فورنسک اور ڈیٹا اینڈ دیگر معاملات جو ہیں اس پر بھی ان 5 معاملات پر آج بھی دن بھر بحث رہے گی۔ کل بھی یہ شروعات ہوئی ہے اس کانفرنس میں، اور آج بھی اس پر بات چیت ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ جو مختلف فورسز کام کر رہے ہیں جموں کشمیر کے اندر ان کے درمیان بہتر تال میل کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، وزیر داخلہ کی جانب سے کل کہا گیا ہے۔ داخلہ وزیر جہاں کلہم حالات پر گفتگو کر رہے تھے، وہیں پر جموں کشمیر کے اعداد و شمار بھی سامنے رکھے ہیں، اور داخلہ وزیر نے کل یہ بتایا کہ 7217 واقعات رونما ہوئے جموں کشمیر کے اندر سن 2004 سے سن 2014 تک، اور 7217 کے مقابلے میں 2197 واقعات رونما ہوئے جون 2014 سے لے کر اگست 2023 تک، اور یہ جو پیریڈ ہے 2014 سے 2023 کے درمیان اگست کا، یہ وزیر اعظم نریندر مودی والی سرکار کا پیریڈ ہے، اور 70% یہ ڈاٹا بتایا گیا کہ 70% کمی ہو گئی ہے جی ملیٹنسی ریلیٹڈ انسیڈنٹس کے اندر۔ پھر آگے کے اعداد و شمار بھی دیے گئے، جون 2004 سے مئی 2014 تک جہاں تک ہم بات کریں 1760 کے آس پاس سویلین مارے گئے، 1060 سیکیورٹی فورسز نشانہ بنے، اور اسی طریقے سے 335 بار جو ہے وہ جو حملے کرنے کی کوششیں جو وہ کی گئی ہے، اور کل ملا کر اب اس کو بھی جب آپ کھنگال کر دیکھتے ہیں تو اس ریشو میں بھی کافی زیادہ کمی آئی ہے۔ سبھی اینٹی ٹیرر ایجنسیز کو 2-3 چیزیں ایڈاپٹ کرنی ہوگی، ایک یہ چاہے وہ NIA ہو، ATS ہو، STF ہو، ان کا ایک لمیٹڈ انویسٹیگیشن کا دائرہ ہے، لیکن وہ بیونڈ دا باکس بھی سوچے کہ کس طریقے سے حالات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تاہم ایک ملی ذمہ داری سب کی یہ ہے کہ اب کوئی نیا سنگٹھن نہ بنے، اب کوئی نیا آتنکی سنگٹھن نہ بنے، کوئی ملیٹنٹ آؤٹ فٹ نہ بنے، اس کو روکنے کے لیے، اس کو فلورش نہ ہونے کے لیے، اس کے تمام وسائل کو منجمد کرنے کے لیے سب کو یکساں طور پر کارروائی کرنی ہوگی۔
से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो खबरों का सिलसिला रखेंगे आपके साथ हम जारी और आपको बताएंगे कि किस तरीके की सूरत हाल है। बिजली को लेकर एक और बयान आया है, क्या कुछ है डिटेल के साथ आपको बताने की कोशिश करेंगे। आगे चलेंगे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की भी बात से आपको बाखबर करेंगे, क्योंकि 2 रोज़ा दौरे पर वो सरहदी जिला कुपवाड़ा के अंदर है। आज क्या कुछ प्रोग्राम है उस पर भी बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के फौरन बाद हाजिर होगा।